آج ہم دیکھیں گے موسم. یہ 3rd چیپٹر ہوگا آپ کا. خیر دیکھ لیجئے گا. تو اس میں سب سے پہلے جو اوپر کے ٹاپکس ہے یہ پوائنٹس تھوڑا ڈسکس کر لیں گے، پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ درجہ حرارت کے خطوط کے بارے میں اکثر پوچھتا. تو یکساں درجہ حرارت والے مقامات کو ملانے والے خطوط کو مساوی الحرارت کہتے ہیں. یعنی ایسے مقامات جہاں پر درجہ حرارت ایک جیسا ہو، تو ان مقامات کو ہم کیا کہیں گے؟ ان مقامات کو ملانے والے خطوط کو. 2 مقامات کو ملا کے سمجھیے. مثال کے طور پہ فرض کریے نظام آباد اور حیدرآباد 2 ایسے مقامات ہیں جہاں کا درجہ حرارت ایک جیسا ہے. تو ان دونوں مقامات کو ملانے کے لیے جو خط کھینچے جاتے ہیں ان کو خطوط مساوی الحرارت کہتے ہیں. آئسوتھرم یعنی ٹیمپریچر، گرمی. یکساں دباؤ والے مقامات کو ملانے والے خطوط کو آئسو بار کہیں گے. مساوی ہوا یا آئسو بار. ہوا کا دباؤ، یکساں ہوا کے دباؤ والے 2 مقامات کو ملانے والے خطوط آئسو بار کہلائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب بارش والے 2 مقامات یعنی ایک مثال طور فرض کیجیے چیرا پونجی اور ماسیرام 2 علاقے ہیں جہاں پر بارش ایک جیسی ہوتی ہے، تو ویسے مقامات کو ملا کے جو خطوط کھینچے جاتے ہیں ملانے کے لیے اس کو ہم کہیں گے خطوط مساوی البارش یا آئسو ہائٹس. انگلش میں نیم یاد رکھ لینا. یہ آئسوتھرم حرارت کے لیے، آئسو بار دباؤ کے لیے، اور آئسو ہائٹس جو ہے وہ مساوی بارش کے لیے. ٹھیک ہے. یکساں موسمی کیفیت ماہ جنوری اور جولائی جیسے حرارت، ہوا کا دباؤ، بارش وغیرہ کے خطوط ہیں. یعنی یہ دیکھیے ماہ جنوری اور جنوری اسٹارٹنگ مہینہ ہے، جولائی 6 مہینے کی بات ہے. تو ان دونوں مہینوں کے درمیان یکساں اگر موسمی کیفیت رہتی ہے کسی مقاموں کی اور اس مقاموں کو ملایا جا رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے آئسو پلیت. مثال کے طور پر کریم نگر اور عادل آباد میں یکساں درجہ حرارت رہتا اکثر و بیشتر. تو ایسے 2 مقامات جہاں پر موسمی کیفیت ایک جیسی ہو، کب؟ جنوری اور جولائی میں. تو ویسے مقامات کو ملانے کے لیے جو خطوط کھینچے جاتے ہیں وہ ہے آئسو پلیت. تو 4 خطوط ہے. خطوط مساوی الحرارت، یکساں درجہ حرارت والے مقامات کو ملانے کے لیے، اور خطوط مساوی الہوا یا انگلش میں آئسو بار، یکساں دباؤ والے مقامات کو ملانے کے لیے. پھر اس کے بعد ہے آئسو ہائٹس، یکساں بارش والے مقامات کو ملانے کے لیے کھینچے جانے والے خط. اس کے بعد دیکھیے گا چوتھا جو تھا یکساں موسمی کیفیت ماہ جنوری اور جولائی میں جن مقامات پر ہوتی ہے ان مقامات کو ملانے کے لیے جو خطوط کھینچے جاتے ہیں اس کو ہم کہیں گے آئسو پلیت. ٹھیک ہے. یہاں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ جی. تو دیکھیے ماہرین موسمیات کیا کرتے ہیں، ہمیشہ کسی بھی علاقے کا جائزہ لینا ہو موسمی حالات کے بارے میں تو وہ ہمیشہ 2 مہینے، وہ ہے جنوری اور جولائی، یہ 2 مہینوں میں جائزہ لے کر اس مقام کے موسمی حالات کو طے کرتے ہیں کہ وہ علاقہ سرد ہے، گرم ہے، بارش والا ہے، کیا ہے. یہ جنوری اور جولائی میں وہاں کے حالات دے کر کیا جاتا ہے. چلیے اب اسی سے آگے بڑھتے ہیں. کسی علاقے پر کسی محدود وقت یا صرف ایک ہی دن کے اندر یا مختصر وقت میں سمجھیے دھوپ، حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوائیں، رطوبت یعنی ہیومیڈیٹی، بادل، پرسیپیشن وغیرہ کی کیفیت کو ہم موسم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ موسم. آب و ہوا الگ ہے، موسم الگ ہے. ویدر کبھی بھی سڈن چینج ہو سکتا. تو ویدر جو ہے مختصر وقت میں کسی بھی مقام کی کیفیت کے بارے میں جو چیزیں رہتی وہ ہے موسم. یا ایک دن بھی ہو سکتا یا 1-2 دن، 4 دن، ہفتہ. ایسا اگر طویل وقت کے لیے معلوم کیا جا رہا تو وہ آب و ہوا ہے، اور مختصر وقت کے لیے ہے وہ موسم ہے، انگلش میں ویدر کہیں گے. ہوا کے دباؤ کو بات پیما یا بیرو میٹر آلے سے ناپا جاتا ہے. ہوا کے دباؤ کو بات پیما بیرو میٹر سے ناپا جاتا ہے، یعنی ہوا کا پریشر کتنا ہے. تو یہ جو بیرو میٹر ہوتا ہے اس میں پارا بھرا ہوا رہتا ہے. پارا سے بھری ہوئی ندی پر جس میں پارا 760 ملی میٹر تک یا 1013 ملی میٹر بار تک اونچا ہوتا ہے، اس کالم یا نلی میں 3 ملی میٹر تک اونچا پارا ہوا کے 4 ملی بار دباؤ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی یہ جو بیرو میٹر ہے اس میں پارے سے بھرا ہوا رہتا ہے. اس میں کیا کرتے اگرچہ 3 ملی میٹر
میں اضافہ ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا میں جو ہے 4 ملی بار دباؤ کا اضافہ ہوا. مثال کے طور پہ فرض کیجیے گا 760 تھا پارا بیرومیٹر میں اور وہ 763 ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 ملی بار جو ہے ہوا کا دباؤ بڑھ چکا ہے. تو یہاں پر یاد رکھنے کی جو چیز ہے بیرومیٹر یاد رکھے تو کافی ہے. ہوا کے دباؤ میں کمی کی شرح ہر 10 میٹر کی بلندی پر 1 ملی بار کی کمی ہوتی ہے. جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے ہر 10 میٹر کی بلندی پر کیا ہو رہا ہوا کے دباؤ میں 10 میٹر کی بلندی پر 1 ملی بار کم ہو رہا. اگر مثال کے طور پہ فرض کیجیے گا ہوا کا دباؤ 100 میٹر کی بلندی پر اگرچہ 11 ہے تو اور 10 میٹر 110 میٹر کی بلندی پر وہ کیا ہوگا 1 ملی بار کم ہو جائے گا یعنی وہ 10 ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہر 10 میٹر کی بلندی پر ہوا کا دباؤ 1 ملی بار کم ہوگا. درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تو ہوا کے دباؤ میں کمی اور درجہ حرارت میں کمی ہوئی تو ہوا کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیے درجہ حرارت جب بڑھتا نا تو ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا اور درجہ حرارت کم ہوا تو ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا. یعنی یہ بالکل ریورس ہے معکوس ہے. درجہ حرارت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا تو ہوا کے دباؤ میں کمی ہوتی. اس سے زیادہ آواز نہیں آ سکتا سب سے لاؤڈ ہے یہ. درجہ حرارت میں اگر اضافہ ہو رہا تو ہوا کے دباؤ میں کمی ہوتی اور اگر درجہ حرارت میں کمی ہو رہی تو ہوا کا پریشر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا. ٹھیک ہے. ہوا میں بخارات کی مقدار کم ہو تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے پانی کی جو بخارات ہوتے ہوا میں اگر وہ کم ہے سمجھیے تو ویسی صورت میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا. عام طور پر سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ اوسط 900 ملی بار سے 1030 ملی بار تک ہوتا ہے. سائبیریا کا ایک مقام ہے جس کا نام ہے اگاٹا. یہاں پر دنیا کا سب سے زیادہ ہوا کا دباؤ ریکارڈ کیا گیا تھا جو 31 دسمبر 1968 میں تھا اور وہ ہوا کا دباؤ تھا 1083.3 ملی بار 1083.3 ملی بار تھا. یہ دنیا کا سب سے زیادہ ہوا کا دباؤ تھا. جو مقام تھا اگاٹا سائبیریا کا مقام ہے یہ اور یہ جو ہے کب ہوا تھا 31 دسمبر 1968 کو. اب یہاں اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے سکتے ہیں آپ باقی آپ کی مرضی. ٹھیک ہے ہٹا دیں. جی سر. چلیے یہ نوٹس کے پیچھے مت جائیے گا امپورٹنٹ پوائنٹس کے پیچھے رہیے گا کیونکہ نوٹ بہت زیادہ ہے پڑھنے میں آپ کو دقت ہوتی. جو چیزیں ضروری ہے امتحان کے نقطہ نظر سے وہ پڑھ لے تو کافی ہوگا. اب اس کے بعد دنیا میں سب سے کم دباؤ جزیرے ماریم کے مغرب میں 12 اکتوبر 1989. اب اس سے پہلے آپ جو دیکھیں اگاٹا وہ سب سے زیادہ تھا. سب سے کم ہوا کا دباؤ دنیا میں میریم کے مقام پر کب ہوا تھا وہ جو تھا کیا ہے ڈیٹ بولیے گا. وہ ڈیٹ ہے 12 اکتوبر 1989. تو یہ جو ہے نا ٹائفون کے وقت ہوا تھا. ٹائفون یعنی طوفان کا ایک نام ہے. سائیکلون جیسے انڈیا میں پکارا جاتا ہے نا وہاں پر ٹائفون پکارا جاتا ہے. ٹائفون کے وقت ٹپ ریکارڈ کیا گیا جو 870 ملی بار تھا. وہ جو تھا 1083.3 ملی بار تھا اگاٹا میں سب سے زیادہ اور سب سے کم یہ ماریم جزیرے میں ہے 870 ملی بار تھا. ہوا کی سطح زمین کے قریب افقی حرکت دائیں سے بائیں جو ہوتی نا اس کو ونڈ کہتے ہیں. زمین پر دائیں سے بائیں جو ہوا چلتی اس کو ہم کیا کہیں گے ونڈ. ہوا کی اوپر سے نیچے کی جانب عمودی حرکت کو ہوائی رویں یا بہاؤ کہتے ہیں. اگر دائیں سے بائیں ہو رہا تو ونڈ ہے. اگر اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر ہو رہا تو اس کو ہم کہیں گے ایئر کرنٹ
या हवाई रवें या बहाव। जैसा बाज़ वक़्त देखिए हवा तेज़ चली तो गोल चक्करदार आता ना वो। हवा के दबाव के उतार-चढ़ाव की शरह प्रेशर ग्रेडिएंट कहते हैं। हवा के दबाव के उतार-चढ़ाव कम-ज़्यादा जो हो रहा है उसको प्रेशर ग्रेडिएंट कहेंगे। यहाँ पे क्या याद रखना, विंड क्या है और हवाई रवें क्या है, बस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हवाओं के बारे में पूछता अक्सर, दायमी हवाएँ, तिजारती हवाएँ, मगरिबी हवाएँ, मशरिक़ी हवाएँ, ये सारी। तो दायमी हवाएँ, दायम का मतलब है हमेशा कायम रहने वाली। दायमी हवाओं का और नाम क्या-क्या है? तिजारती हवाएँ भी कहते हैं इसको और क़ुतबी मशरिक़ी हवाएँ भी कहते हैं। और दायमी हवाएँ हमेशा एक ही सिमत में चलती, इसीलिए इसको दायमी हवाएँ कहते हैं। समझ में आ गया? दायमी हवाएँ हमेशा एक ही सिमत में चलने वाली। इसकी 2 मिसालें हैं, तिजारती हवाएँ और क़ुतबी मशरिक़ी हवाएँ। चलिए अब देखते हैं एक-एक से। तिजारती हवाएँ, ये कहाँ चलती? ख़त सरतान और ख़त जद्दी पर कायम ज़्यादा दबाव की पट्टियों से निकलकर ख़त इस्तिवा की कम दबाव की पट्टी की तरफ चलती है। ख़त सरतान और ख़त जद्दी। अब ये है ख़त इस्तिवा और ये ख़त सरतान, ख़त जद्दी। तो ये जो हवाएँ चल रही तिजारती हवाएँ ख़त सरतान और ख़त जद्दी से निकलकर ख़त इस्तिवा की तरफ जा रही, ऐसा। तिजारती हवाएँ ये हवाएँ शुमाली निफ्स कुर्रे में शुमाल मशरिक़ की तरफ चलती है और जुनूबी निफ्स कुर्रे में जुनूब मशरिक़ की तरफ चलती हैं। देखिएगा आप, किधर चल रही है? शुमाली निफ्स कुर्रे में शुमाल मशरिक़ की तरफ चलती, शुमाल मशरिक़ की तरफ समझिए ऐसे। और जुनूबी निफ्स कुर्रे में ये हवाएँ जुनूब मशरिक़ की तरफ चलती है। तो यहाँ पर आप दायमी हवाएँ कौन-सी है, तिजारती हवाएँ कौन-सी है, ये याद रखना। और एक उसके बाद आता है मगरिबी हवाएँ, वेस्टर्लीज़। ये क्या है? ज़्यादा दबाव वाले इलाके मुंतक़े हारा के ज़्यादा दबाव वाले इलाके से मुंतक़े मोतदिला में ख़ुतबैन की तरफ चलती। देखिए, ये तिजारती हवाएँ जो है ना, ख़त सरतान से ख़त जद्दी और ख़त सरतान दोनों के दरमियान से, दोनों से ख़त इस्तिवा की तरफ जारी। इसका उल्टा जो है ना मगरिबी हवाएँ, वो क्या होता? ख़त इस्तिवा से ख़त सरतान और ख़त जद्दी और ख़ुतबैन की तरफ चल रही। क्लियर? तिजारती हवाएँ ख़त सरतान ख़त जद्दी से ख़त इस्तिवा की तरफ चल रही और मगरिबी हवाएँ ख़त इस्तिवा से ख़त सरतान ख़त जद्दी की तरफ चल रही है। क्लियर? यहाँ डाउट तो नहीं है ना? नो सर। चलिए, ख़ुतबी मशरिक़ी हवाएँ, ख़ुतबी का मतलब है मालूम है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और मशरिक़ी मतलब मशरिक़ में चलने वाली। ये हवाएँ ख़ुतबैन के ज़्यादा दबाव वाले इलाके से मुंतक़े मोतदिला में टेम्परेट ज़ोन में कम दबाव वाले इलाके की तरफ चलती है। देखिए, अब मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए ये है ज़मीन और ये है ख़त इस्तिवा और ये हो गए ख़ुतबैन शुमाल में और जुनूब में। तो ये हवाएँ क्या चल रही है? ख़ुतबैन के ज़्यादा दबाव वाले इलाके से मुंतक़े मोतदिला। जैसे मैं इससे पहले बता चुका आपको कि ये जो है ना मुंतक़े हार्रा है, जहाँ पर ज़्यादा हरारत रहती है ख़त इस्तिवा की दोनों जानिब। और उसके बाद क्या आता? मुंतक़े मोतदिला आता। मुंतक़े हार्रा के बाद मुंतक़े मोतदिला, ख़त इस्तिवा की दोनों जानिब ये भी। और उसके बाद जो आखिर का जो बचा हुआ रहता ना, वो है मुंतक़े बारदा, मतलब ठंडा इलाका ये। तो ये जो ख़ुतबी मशरिक़ी हवाएँ हैं, ख़ुतबैन से क्या कर रही है? ख़ुतबैन से चल रही है। ख़ुतबैन से मुंतक़े मोतदिला की तरफ आ रही है। ये ख़ुतबैन है, ये पीला मुंतक़े बारदा है और ये ब्लू कलर का जो है मुंतक़े मोतदिला। तो ये जो हवाएँ हैं, कौन-सी? ख़ुतबी मशरिक़ी हवाएँ ऐसे चलती देखिए, ख़ुतबैन से मुंतक़े मोतदिला की तरफ। क्लियर? समझना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए फसली या मौसमी हवाएँ, सीज़नल विंड्स जो सीज़नों में चलती ना, ये हवाएँ ख़ास मौसम में चलती है। किसी मौसम में किसी एक रुख पे चलती, तो किसी दूसरे मौसम में किसी दूसरे रुख पर चलती है।
اس لیے ان کو فصلی ہوائیں پیریوڈک ونڈس بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ ہے موسم کے حساب سے چلتی, کوئی خاص سمت میں نہیں چلتی, کبھی ادھر کبھی ادھر, مشرق میں مغرب میں جدھر چاہے ادھر چلتی ہے. یہ مثال کیا ہے اس کی؟ فصلی ہواؤں کی, سیزنل ونڈس کی. مانسونی ہوائیں, نسیم بری, انگلش میں کہیں گے لینڈ بریز. نسیم کے معنی ہے بریز اور لینڈ کے معنی ہے بری, اور نسیم بحری سی بریز, اور پہاڑوں سے وادیوں کی طرف چلنے والی ہوائیں ویلی بریز. یہ ساری کی سارے جو ہے نا موسمی ہواؤں کی مثال ہے. امتحان میں کیا دیتا؟ نسیم بری ہوائیں اس ہوا کی مثال ہے. مغربی ہوائیں, مشرقی ہوائیں, تجارتی ہوائیں, فصلی ہوائیں یا موسمی ہوائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈاؤٹ ہے تو بولیے گا. دائمی ہوائیں, تجارتی ہوائیں, مغربی ہوائیں, خود بھی مشرقی ہوائیں, اور فصلی یا موسمی ہوائیں. بولیے, کچھ ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے نا؟ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, بعد میں پڑھیے گا اطمینان سے, سر آپ کو یاد رہے گا. پٹی اور زیادہ دباؤ والی پٹی کیا ہے سر؟ یہ دیکھیے, خط استوا پہ جو ہے نا درجہ حرارت زیادہ رہتا, تو جب درجہ حرارت زیادہ رہتا دباؤ کم رہتا نا. ابھی پڑھے ہم اس سے پہلے, درجہ حرارت زیادہ ہے تو ہوا کا دباؤ کم رہتا, اور درجہ حرارت کم رہا تو ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا. تو خود بین جو ہے نا وہاں پر درجہ حرارت کم رہتا, اس لیے زیادہ دباؤ والے علاقے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا وہاں پہ بہت زیادہ دباؤ رکھتی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ اس کو ریپیٹ جتنا کریں گے نا اتنا زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتا, ایک بار سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اس کے بعد تیسری قسم ہے مقامی ہوائیں. یہ ہوائیں مقامی درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ میں تبدیلی واقع ہونے سے وجود میں آتی ہے. ان ہواؤں کا دائرہ کار اور اثر ایک محدود علاقے تک ہی رہتا ہے. یہ ہوائیں چکردار ہوتی ہے اور طوفانی ہوتی ہے. کون سی؟ مقامی ہوائیں. مقامی ہواؤں کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں مقامی ہواؤں کو سائیکلون یا باد گولا ہوائیں کہتے ہیں. سائیکلون ہمارے پاس آتا, اس سے پہلے آپ ٹائفون دیکھے تھے. شمالی امریکہ میں راکیز سے نکل کر کینیڈا کی طرف چلنے والی گرم ہوا کو چناؤ کہتے ہیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ لوگوں سے ایک چیز یہ بھی ہے, یہ نوٹس کسی کو شیئر نہیں کرنا. یہ نوٹ جو ہے تقریباً 1-2 سال کی محنت ہے, اور 2014 سے پہلے کی بکس ہے اور اس کے بعد کی بکس ہے. یہ میرے پرسنل نوٹس ہے, میں ابھی تک کسی کو شیئر نہیں کیا. آپ لوگوں کے فائدے کے لیے شیئر ہو رہی ہے, تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا امانت کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد دیکھیے گا. شمالی امریکہ اور راکیز سے نکل کر, یعنی شمالی امریکہ میں پہاڑ ہے راکیز, وہاں سے نکل کر کینیڈا جو بیچ میں ہے اس طرف چلنے والی گرم ہوا کو چناؤ کہتے ہیں. امتحان میں سوال کیا تھا؟ گرم ہوا کی مثال ہے, تو وہاں پر چناؤ رہے گا. دیکھیے اب بہت ساری گرم اور سرد ہوائیں. ہندوستان میں گرم ہوا کی مثال جو ہے نا لو ہے, جو مئی میں چلتی. یورپ میں کوہ آلپس سے سوئٹزرلینڈ کی بڑھتی ہوئی گرم ہوا کو فوہان کہتے ہیں. تو چنوک, فوہان, یہ ساری گرم ہوا کے نام ہیں. امتحان میں آپ کو اس ملک کا نام پوچھے گا یا ہوا کا نام پوچھے گا. وسطی یورپ میں چلنے والی نہایت سرد ہوا کو بورا, سرد ہوا کی مثال ہے بورا. اور جنوب مشرقی فرانس کے برفانی پہاڑوں سے چلتی ہوئی سرد ہوا کو مسٹل کہیں گے. تو دیکھیے گا, گرم ہوا 2 ہے, چنوک ہے جو شمالی امریکہ میں چلتی, اور فوہان ہے جو یورپ میں آلپس پہاڑ سے چلتی. یہ ہے گرم ہوائیں. ٹھنڈی ہوائیں یورپ میں چلنے والی سرد ہوا کو بورا کہیں گے, اور جنوب مشرقی فرانس میں چلنے والی سرد ہوا کو مسٹرل کہتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کے جنوبی کیلیفورنیا کے پہاڑوں کے سم سے چلنے والی گرم ہوا کو سینٹا آنا کہتے ہیں. یہ سوال آیا تھا اس سے پہلے. سینٹا آنا, فوہان, چنوک, یہ ساری کیا ہیں؟ گرم ہوائیں ہیں. ٹھیک ہے, 3 ہیں دیکھیں, چنوک, فوہان, سینٹا آنا. شمالی امریکہ کی چنوک, جنوبی امریکہ کی سینٹا آنا, اور یورپ کی ہے فوہان. یورپ میں آلپس کے پاس. یورپ کا جو وسطی علاقہ ہے وہاں پر ٹھنڈی ہوا بورا, اور جنوب مشرق فرانس کے برفانی پہاڑوں میں چلنے والی ٹھنڈی ہوا مسٹرل.
इस बार जो एग्जाम है DSC कंडक्ट करने वाला है ना, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, वो लोगों के सवाल अजीब गरीब रहते, इसलिए बहुत एहतियात से दिलचस्पी से पढ़िएगा, कुछ भी सवाल आ सकते। इससे पहले DSP कंडक्ट करता था तो एक लेवल में रहते थे वो, अब का पता नहीं ये लोग क्या करते। खैर, तो सेंटा आना भी जो है ना गर्म हवा है। गर्म हवा के झगड़ को कहते हैं द आयोक। गर्म हवा का जो झगड़ चलता नहीं, एक साथ खूब चलती थी हवा, उसको हम कहेंगे द आयोक। दूसरे मुकामात पर मुकामी हवाओं को बहुत सारे नामों से पुकारते, जैसे टाइफोन है जापान के पास, टॉर्नेडो से अमेरिका में, होरिकेन भी है, ये भी अमेरिका वगैरह का है, और पोम्पेरन है, पोम्पन, बेलजार्ड है, साइमोन है, ये सारी की सारी जो है ना मुकामी हवाओं के नाम है। मुकामी हवाओं के नाम, ये सारे के सारे मुकामी हवाएं हैं। ये चेनॉक, फुहान, बूरा, मिस्ट्रल, सैंटाना, ये सारी की सारी ये भी मुकामी हवाएं। हिंदुस्तान की मुकामी हवा का नाम है साइक्लोन या बादगोला। मानसून बेहतरीन मिसाल है मौसमी हवाओं की, क्योंकि मानसून में मौसमी हवा चलती, वो खाली खास मौसम में चलती। हवाएं जो साल तमाम मुसलसल एक ही सिंध में चलती है वो कहलाती हैं दायमी हवाएं। मैं से पहले बोला, कंटिन्यू, हमेशा दायमी हवाएं। ये मौसमी हवाओं का कोई भरोसा नहीं, किधर भी चलती है। दायमी हवाएं हमेशा एक ही सिंध में चलती, साल तमाम। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। मैं जिन जिन सवालों पे स्ट्रेस कर रहा हूँ उसको तो खास कर पढ़िएगा, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप लोगों को रुतूबत और तस्सीब तो पता होगा। हवाई सतह जमीन से पानी के बुखारात या भाप की शक्ल में हासिल करती है। मालूम है ना आपको, वाटर साइकिल है, देखिए इसको आबी चक्कर या हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। यानी पानी क्या है, दरियाओं से समुद्रों से भाप बनकर उठता, फिर बादल बनते, फिर बरसते, फिर पानी दरियाओं में आता, फिर बादल बनता, ये सारा अमल आबी चक्कर कहेंगे। अम्ल तबखीर क्या है, देखिए इवेपोरेशन एक ऐसा तरीके अमल है जिसके जरिए पानी माया से भाप में तब्दील होता। समुद्र का पानी है ना, अब हम देखते हैं बर्तन पे जब कुछ पका रहे हैं, कुछ गर्म कर रहे हैं पानी पे, तो आबी बुखारत बन के उसकी थाली पर नजर आते। वही पानी भाप, माया से भाप में तब्दील होना, वो है अम्ल तबखीर। बाज औकात बर्फ, स्नो और आइस से रास तौर पर भाप वेपर बुखारात बन जाते हैं, जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। यानी सब्लिमेशन क्या है, बर्फ से अगर पानी बुखारात बन के उड़ जा रहा तो वो है सब्लिमेशन। और पानी का माए से भाप बनना, वो अमल को कहेंगे हम अम्ल तबखीर। नबातात में मौजूद पानी ट्रांसपीरेशन के जरिए बुखारात में तब्दील होता है। नबातात में है ना, देखते हैं हम पौधों पर अक्सर सुबह सुबह पानी की बूंदें नजर आती, तो वो क्या है, ट्रांसपीरेशन है। गर्म खून वाले हैवानात बशमूल इंसान तनफ्फुस के जरिए बुखारात तनफ्फुस के जरिए बुखारात मौजूद होते हैं। इस अमल को हम एक्सलेशन कहते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांसों में भी क्या रहते, बुखारात रहते, उसको हम कहेंगे एक्सीलेशन। इनहिलेशन, एक्सीलेशन। गर्म खून वाले हैवानात और जानवर ये चीजें करते। हवा में किसी दिए हुए यूनिट में जिस तनासब से आबी बुखारात मौजूद होते हैं, इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में किसी दिए हुए यूनिट में, मिसाल तौर पे 10 यूनिट में आबी बुखारात 1000 है समझिए मिसाल के तौर पे, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आबी बुखारात की पानी में मौजूदगी ह्यूमिडिटी कहलाती। अगर आबी बुखारात ज्यादा हो गए तो हमें ह्यूमिडिटी, हिद्दत महसूस होती, चिपचिपाहट महसूस होती। हवा की एक यूनिट जगह में मौजूद बुखारात का वजन क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या खतई रुतूबत। ये सवाल आता है हमें, हवा के एक यूनिट जगह में मौजूद बुखारात का वजन, यानी एक यूनिट में कितना आबी बुखारात है उसका वजन जो कहलाता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एक यूनिट में जिस तनासब से आबी बुखारात मौजूद होते, 1:30, 1:20 या 1:2, ये जो भी है ना,
इसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहेंगे। और जब 1 यूनिट में जो आबी बुखारात का वजन होता उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है। हवा में मौजूद आबी बुखारात को एक आले के जरिए नापा जाता है जिसको कहते हैं हैग्रोमीटर। बैरोमीटर हवा का दबाव और हैग्रोमीटर हवा में मौजूद आबी बुखारात को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना 100% हो तो हवा को सैचुरेटेड कहते हैं, यानी अगर 100% उसमें आबी बुखारात मौजूद हो तो उसको सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है। और ये जो सैचुरेशन का पॉइंट होता इसको नुक्ते औस कहते हैं, ड्यू पॉइंट। इस वक्त क्या होता, हम देखते शर्मा में सुबह के वक्त ओस नजर आती, ड्यू, वो क्या है, हवा में मौजूद आबी बुखारात है, वो क्या होते, जम जाते, रुतबत को संभाल नहीं पाते, सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाते हो और गिर जाते हो। अगर हवा का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेंटीग्रेड हो तो इसको फ्रॉस्ट पॉइंट कहते हैं, मालूम ना। अगर टेम्परेचर 0 हो गया तो फ्रॉस्ट, फ्रिज में देखते आप फ्रॉस्ट हो जाता, 0 हो गया तो उसको फ्रॉस्ट पॉइंट कहेंगे। अगर हवा का दर्जे हरारत 0 दर्जे से कम हो जाए तो 0 से भी कम, माइनस, आबी बुखारात तकसीफ अमल यानी नुक्ते इंजमात जो होता ना में कमी आती है जिसको हम कंडेंशन कहते हैं। क्या होता, 0 दर्जे से कम हो गया समझिए तो आबी बुखार की तकसीफ जो है ना वो कम हो जाती है, इसको हम कंडेंशन कहेंगे। और दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से कम हो तो करोड़ों बर्फ के जरात में तब्दील होते हैं जिसको हम होर फ्रॉस्ट कहते हैं। नुक्ते इंजमात क्या है, 0, उससे कम हो गया तो बर्फ के जर्रात में तब्दील हो जाते हो, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम कहते हैं होर फ्रॉस्ट। उसके बाद देखिए आप, कभी कभी बारिश का पानी बादल से नीचे की तरफ गिरते हुए ज्यादा ठंडा होकर मुंजमद हो जाता है तो बजाय बारिश के गारे या ओलाबारी होती है जिसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। ओले गिरते ना, वो उसकी वजह ये रहती कि पानी जो है ना ज्यादा ठंडा हो जाता, बर्फ की शक्ल में नीचे गिरता। क्लियर। तो यहाँ पर क्या याद रखना आप, इवापोरेशन क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है। ये सवाल अहम है, देखिए मैं टिक कर रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, ये सवाल बहुत अहम है, आबी चक्कर भी आ सकता, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है। कुछ डाउट है, आगे बढ़े। नहीं है सर। चलिए, समझ में तो आ रहा होगा, उम्मीद है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जी, जमीन के ऊपर पानी के खतरे मुंजमद होकर एक पतली सी तह बर्फ की जम जाए तो इसे हम स्लीट कहेंगे, या सेल ईटी, पतली बर्फ की सतह जम गई तो। इस्तिवाई खत्ते में अक्सर रोजाना दोपहर के वक्त या फिर रात के इब्तिदाई हिस्से में होने वाली बारिश को कन्वेंशनल रेन कहेंगे। तो क्या होता है, खतरे से दर्जे हरारत ज्यादा रहता, दर्जे हरारत ज्यादा रहने की वजह से आबी जो दौर है वो बहुत फास्ट हो जाता, तो वहां पर खतरे में साल के 365 दिन बारिश होती, हर रोज बारिश होती वहां पर, जो भी इलाके खतरे पर है, जैसे अमेजोन फॉरेस्ट है, इंडोनेशिया वगैरह है, वहां पर तबाही बारिश यानी जो हमेशा होती ना नॉर्मली, वो ऑर्गेफिक रेनफॉल कहेंगे, रिलीफ रेन या ऑर्गेफिक रेनफॉल। जो तबाही होती ना, केमिकल से नहीं, जो कुदरती तौर पर होती। पहाड़ों का वो हिस्सा जो बारिश से महरूम रहता है इसको बारिश का साइबानी इलाका, रेन शैडो रीजियन कहलाता है। क्या होता है, पहाड़ है ना, अब मिसाल तौर पे समझिए एरावली पहाड़ है या मगरिबी घाट है, ये मगरिबी घाट ऊंचे ऊंचे रहते, तो यहाँ पर बादल आते, आके आगे जाके बरस जाते, तो ये जो इलाका है ये पहाड़ के बिल्कुल करीब का, यहाँ पर बारिश नहीं होती क्योंकि वो पहाड़ घे बादल के रास्ते में आ जाते। तो ऐसे इलाकों को हम क्या कहेंगे, रेन शैडो रीजियन कहेंगे, या इसको हम आइस वोट स्लाइड्स कहेंगे। ये हिंदुस्तान में कहें, देखिए मगरबी घाट का हिस्सा है
اور सतह मुर्तफा दक्कन वगैरह है। तो यहाँ पर जो है ना ये बारिश का साहिबानी इलाका है। साइक्लोन की दो किस्में हैं, कौन कौन सी? मुंतक़े हारा के साइक्लोन जहाँ पर हरारत ज्यादा होती, इसकी शक्ल क्या रहती? गोल होती। ये साइक्लोन अक्सर साहिली इलाकों जजीरों पर चलते हैं। मसलन हमारा हिंदुस्तान भी क्या है, मुंतक़े हारा में है, मुंतक़े हारा से करीब मुंतक़े मोतज़िला में है बिल्कुल। तो मसलन मुंतक़े हारा के साइक्लोन कहाँ आते? जज़ायर, शर्क़ुल हिंद, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज और खलीज बंगाल आते हैं मुंतक़े हारा के साइक्लोन। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह में आते। बहुत तेज हवा 100 मील फी घंटे या इससे भी ज्यादा रफ्तार से चलती है। इसे सात तूफान भी लाती है। हिंदुस्तान में इसको साइक्लोन कहते, जापान में इसको टाइफोन कहते। तो हर इलाके में इसके अलग अलग नाम रहते। तो कितनी रहती? 100 माइल पर आवर से भी ज्यादा तेज चलती, तकरीबन कार से भी ज्यादा तेज, समझिए आप। जजायर अरबुल हिंद में, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और कैरिबियन सी में साइक्लोन कहते हैं। कहाँ पर? जजायर अरबुल हिंद, अरब के जजीरे हैं ना, बहरे अरब के, वो वेस्ट इंडीज और मैक्सिको वगैरह में। बहरुल काहल के मगरबी हिस्सों में जैसे चीन वगैरह में इसको टाइफोन कहते हैं। देखिए जापान, चीन वगैरह में इसको क्या कहेंगे? टाइफोन। हिंदुस्तान में साइक्लोन, जापान में इसको हम, चीन में सॉरी, टाइफोन कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में इसको विल्ली विल्ली कहेंगे। चीन में टाइफोन, ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली और हिंदुस्तान में साइक्लोन। ये क्या है? मुंतक़े हारा के साइक्लोन है। तेज हवाएं, उसके नाम है ये मुख्तलिफ। क्लियर? तो खाली मुकामी हवाओं के नाम याद रख लेना। साइक्लोन कहाँ बोलते, टाइफोन कहाँ बोलते, ये याद रख। एक मिनट, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि फिर क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप, हम देखते हैं आबी कुर्रा। मौसम में ये सारे भी है, आबी कुर्रा। तमाम जराये से जमीन पर पहुंचने वाला पानी सिर्फ 1% है। 1% भी कम मकदार में इंसान के लिए कारामद, यानी समंदरों में, दरियाओं में, तालाबों में बारिश का जो पानी या जो भी पानी समुद्र वगैरह में, उसमें से सिर्फ 1% ही हमारे इस्तेमाल के काबिल है, बाकी खारा पानी है। आबी चक्कर मुख्तलिफ शक्लों में जैसे ठोस, माया, गैस वगैरह में जारी रहता है। ये भी आबी चक्कर समंदर, आब हवा, सतह जमीन, जेर जमीन और तमाम जानदारों के दरमियान पानी की मुंतकिली से भी मुताल्लिक़, यानी तमाम जानदारों को पानी कहाँ से हासिल होता है? ये आबी चक्कर से हासिल होता है। ये फार्मूला भी रख लीजिए आप, आर एफ इक्वल टू आर ओ प्लस ई टी। यहाँ पर आर एफ क्या है? रेनफॉल है, और आर ओ क्या है? रन ऑफ है, और ई टी क्या है? इवापोरेशन ट्रांसपीरेशन, यानी इखराज के बुखारात। यानी रेनफॉल कैसे मालूम होता? इसमें दो चीज़ों को जमा करना पड़ता, रन ऑफ यानी बारिश, और ईवो ट्रांसपीरेशन यानी आबी बुखार का इखराज। ये दोनों को मिलाए तो रेनफॉल आता। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। आबी दौर के 6 मदारिज है। कितने? 6 स्टेजेस है। पहला है तबखीर, इवेपोरेशन, जिसमें पानी जो है भाप बन के उड़ जाता। दूसरा है हमलो नकल, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें जो है ना पानी उड़ने के बाद बादल की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते, जो बादल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते, उस हरकत को हम हमलो नकल या ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। अब देखिए मिसाल के तौर पे जाहिर सी बात है, अब हमारे पास तेलंगाना में समंदर तो करीब नहीं है, अब बादल कहाँ से आते? समंदरों के पास, तालाबों के पास या दरियाओं के पास। पानी जो आबी चक्कर के जरिए ऊपर उड़ जाता बादल बन के, हवाओं के जरिए बादल क्या है एक मुकाम से दूसरी मुकाम को जाते, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन या हमलो नकल कहेंगे। दूसरा
स्टेज है आबी दौर का। तीसरा देखिए तकसीफ कंडेंसेशन, फिजा में मुंतकिल शुदा पानी के बुखारात तकसीफ पाकर छोटे छोटे खतरे या बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं, इसको कहेंगे तकसीफ। पानी क्या हो रहा, भाप बन के उड़ रहा, बुखारात बन के। बुखारात क्या हो रहे, छोटे छोटे खतरे की शक्ल में आ जा रहे या बादल की शक्ल में आ रहे, तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, तकसीफ या कंडेंसेशन कहेंगे। मेरे ख्याल से टेट में सवाल आया था इसके ताल्लुक से, ये आबी दौर के जो तबखीर वगैरह है। तरसीब परसिपिटेशन सॉरी, पानी का आबो हवा से सतह जमीन पर मुंतकिल होने का इब्तिदाई मेकानिज्म तरसीब है। तरसीब का मतलब है बारिश। जब बादल जमीन की ऊपरी सर्द हवा से टकराते हैं तो बारिश ओला या बर्फ की शक्ल में जमीन या समंदर पर वापस आते। क्या होता, बादल बनते ना, बादल बनने के बाद ठंडी हवा से टकरा के बारिश होती। तो तरसीब का मतलब कुछ नहीं है, बारिश है सिर्फ। और उसके बाद देखिएगा बहाव, रन ऑफ, की क्या है, ज्यादातर पानी जो जमीन पर आता है। मैं यहाँ हूँ, बोलो क्या म्यूट म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। ओके, मैं डर गया, इतनी खतरनाक आवाज अचानक। खैर, ज्यादातर पानी जो जमीन पर आता है वो कहाँ से आता, पहाड़ों पे ज्यादा बारिश होती, पानी बहकर आता। कुछ हिस्से जमीन में जज्ब होकर जमीन जमीन पानी से मिल जाता है, बकिया पानी दरियाओं के जरिए वापस समुद्र में चले जाता है। अब मिसाल के तौर पर फर्ज करिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही, पहाड़ी इलाके है, वहां पर बारिश की वजह से क्या होगा, पानी बह बह के आया, थोड़ा पानी जेर जमीन चले गया, जमीन जज्ब कर ली, बाकी का पानी बह के क्या होता है, समुद्रों में जाके मिल जाता है। अब देखते हैं हम गोदावरी दरिया कृष्णा वगैरह में तूफान आते, बहुत ज्यादा बारिश होती, परसों जो हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ, ये पानी जो है बह के दरियाओं के जरिए फिर जाके समुद्र में मिल गया। थोड़ा पानी जज्ब करती जमीन, बाकी क्या करती, समुद्रों में जाके मिल जाता। तो ये क्या है, पानी का बहाव है, रन ऑफ। पानी का 97.25% खारा पानी है समुद्रों में जो है, और सिर्फ 2.75% ताज़ा पानी है दुनिया में। ताज़ा पानी का आजम तरीन हिस्सा यानी वो कहाँ पर है, 68.7 अंटार्कटिका में, और आर्कटिक और पहाड़ी इलाकों में बर्फ और बर्फ के खिलाफ की शक्ल में मौजूद है। देखिए पानी जो है ना जुमला, उसमें से 97.2% खाते हैं समंदर का, और सिर्फ 2.75 पानी जो है ताज़ा पानी पीने के काबिल है। और ये ताज़ा पानी में भी ज्यादा हिस्सा, यानी अगर ताज़ा पानी 2.75 है तो वो 100% अगर मान लेंगे तो उसका 68.7% वो भी कहाँ है, अंटार्कटिका के पहाड़ों में बर्फ की शक्ल में मौजूद है। 29.9% जेर जमीन ताज़ा पानी मौजूद है, जो जुमला ताज़ा पानी का 29% है। यानी ताज़ा पानी कहाँ कहाँ है, देखिए एक तो बर्फ की शक्ल में अंटार्कटिका वगैरह में है, और दूसरा जेर जमीन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। भारी अजसाम को क्या कहेंगे, आबी अजसाम को बहर आजम कहेंगे। बड़े बड़े पानी के समंदर जो है वो बहर आजम कहलाते हैं। बहर आजम 5 ही आप लोगों को मालूम है, बहरुल काहिल, बहर उकियानूस, बहर हिंद, बहर जुनूबी, बहर खुतब शुमाली या बहर मुंजबत शुमाली। समंदर एक खारे पानी का हिस्सा है जो मुकम्मल तौर पर खुश्की से घिरा हुआ होता है, ये मालूम सब। बहरुल काहिल और एशिया और ओशियाना यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यूगिनिया को अमेरिका से जुदा करता है। कौन कर रहा, बहरुल काहिल जुदा कर रहा है, किसको कर रहा, एशिया को, और ओशियानिया, ओशियानिया क्या है, ये ओशियाना में ये सारे मुल्क शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूगिनिया, अमेरिका वगैरह। बहरुल काहिल क्या कर रहा है, एशिया और अमेरिका को जुदा कर रहा। बहर क्या कर रहा है, अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जुदा करता। बहर अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जुदा करता है। बहर हिंद जनूबी एशिया में बहते हुए अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को जुदा करता है। अफ्रीका के नीचे सीधी तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसको जुदा करने वाला बहर हिंद है। 3 बड़े समंदर हो गए। चौथा है बहर अंटार्कटिक या बहर जनूबी भी कहते हैं इसको। ये क्या है, बहरुल काहिल से बहर उकियानूस को और बहर हिंद की
तौसी समझा जाता है, यानी जो नीचे है ना बहर ओकेनस के नीचे, बहरीन के नीचे, उस समंदर को हम बहर अंटार्कटिक कहेंगे। और बहरे मुंजम शुमाली जो शुमाल में है ना, आर्कटिक साइबेरिया का इलाका जहाँ पर इग्लोस वगैरह रहते, वो क्या है, कभी ओकेनस का समंदर समझा जाता था, जो आर्कटिक दायरे के ज्यादातर हिस्से पर फैला हुआ है। और ये क्या करता, जुनूबी अमेरिका और एशिया में बहता है। तो बहरे मुंजम शुमाली शुमाल में है, बहरे मुंजम जुनूबी या बहरे जुनूबी जुनूब में है। ये किसको कौन जुदा करता है, याद रख लेना, ठीक है। ये बर आज़मी किनारा वगैरह यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको, वो फिर से देखेंगे। हाँ, यहाँ पर ये देख लीजिएगा आप, ये खंदक, खंदक यानी गहरी खाइयां। ये खंदक जो है ना, सबसे ज्यादा गहरी जो है ना, बहरुल काहिल में है, 11,022। इसको हम कहेंगे चैलेंज या मारीना, मरीना ट्रेंच कहते हैं इंग्लिश में। ये सबसे गहरी खाई है बहरुल काहिल में, जो 11,022 मीटर है। यानी इसमें हिमालय के जैसे, और थोड़ा सा हिमालय पूरा का पूरा भी डूब गया तो फिर भी समंदर की सतह पर नहीं आता वो। तो इतना गहरी खाई है खंदक, जो है बहरुल काहिल समंदर में, और उसका नाम है मरीना ट्रेंच या चले मरीना। ये पहली दुनिया की सबसे बड़ी गहरी खाई या खंदक है। दूसरा है पिरोटोरिको या नेवेस, ये बहरे ओकेनस में है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली बहरे हिंद का याद रख लीजिए, जावा के मुकाम पर है, जो 7,450 मीटर है, और सबसे बड़ा बहरुल काहिल का मरीना ट्रेंच है। ठीक है। उसके ऊपर एक है आइसोबात, समंदरी तह के जेर सतह मसावी उमूदी फासले पर जोड़ने वाले खत को, जो कभी समुद्र की गहराई जाहिर करने वाला खत कहलाता है। आइसोबात क्या है ये, आइसोबात समंदरी तह के मसावी सतहों को मिलाने वाले खत। अब मिसाल तौर पर समंदर है, समझिए, ये समंदर के, ये सारा समंदर है ऊपर, तो यहाँ पर जो है ना, दो मसावी सतह को मिलाने वाले खत जो है ना, उसको हम कहेंगे आइसोबात। ठीक है। सोडियम क्लोराइड का नाम मालूम है आपको, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो बारिश और दरिया से हासिल होता। ठीक है। सॉल्टिनिटी क्या है, ये खारेपन की इस्तिलाह है, समंदर के तहलीलशुदा नमक की मकदार की तारीफ में इस्तेमाल किया था। साल्टिनिटी, समंदर के खारापन को साल्टिनिटी कहेंगे। समंदर में सिर्फ सोडियम क्लोराइड आम नमक की मकदार कितनी रहती, 77.8%। और समंदरों का खारापन कितना है, 35% है, जो 1,000 पानी के हिस्से का 35वां हिस्सा है। 35% समुद्र में खारा पानी रहता, और दरियाओं के पानी में जो है ना, सिर्फ 2% सोडियम क्लोराइड रहता। समुद्र का पानी सबसे ज्यादा खारा, दरियाओं का पानी, जिसको मीठा पानी बोलते हैं ना, वो तो उसमें सिर्फ 2% नमक रहता, खारापन। ये याद रख लीजिए दो चीजें। चलिए और एक लास्ट देख लेते हैं। सिर्फ मैं आपके एग्जाम के हद तक जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है, इससे और एसजीडी के लिए तकरीबन सेम है। आबी असम कौन से हैं, वियान झील तुर्की में है। इसमें जो ना 330% खारापन है। देखिए, दुनिया की सबसे ज्यादा खारी जो झील है ना, टर्की की है वो, उसमें 330% खारापन है, 100% भी नहीं, 330%। और एक है बहरे मुर्दार, ये इसराइल में है, रेड सी है, समंदर के पास है ये, सऊदी अरब के पास भी आता है ये, जहाँ पर अब सऊदी अरब न्यूम सिटी जो बना रहा ना, वही है ये बहरे मुर्दार। यहाँ पर जो इसराइल में है ये 238% है ये। तो सबसे ज्यादा खारापन जो है ना, वो तुर्की की वियान झील में है। और एक अमेरिका में झील है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, जिसमें 220% खारापन है। समंदर में मौजूद एकसा खारेपन के मकामात को जाहिर करने वाले खत को आइसोहैलाइन कहेंगे।
ISOHALINI، ہیلون. ٹھیک ہے.